Okay, so yesterday we were discussing about acceleration. And what is acceleration? Acceleration is a vector quantity. It is the change in velocity. It is the variation of velocity with time. It may be positive, it may be negative, it may be zero. साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि the direction of acceleration is not depend on the direction of velocity, but it is depend on the change in velocity. मैंने ये भी कहा था कि it may be possible velocity is zero and acceleration is maximum, or it may be possible velocity is maximum and acceleration is zero. So there is a lot of variation. हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं. Today we will discuss about three equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as. ये आपने पढ़ी हुई है पहले से, लेकिन इनको हम एक अलग ढंग से पढ़ेंगे और इनको हम दो तीन तरीके से पढ़ेंगे बेटा. ये इनको भी हम पहले ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, फिर हम इसको हमारा जो सिंपल मेथड है उससे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, और लास्ट में हम इसे कैलकुलस मेथड से यानी कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल से भी करेंगे. ये कुल तीनों इक्वेशंस होंगी. सो बेटा हेडिंग डालना आज का आपका हेडिंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन of motion from velocity time graph. As you know, a graph which is plotted between velocity and time is called Vitti graph. हम एक सिंगल ग्राफ बनाएंगे और उसी ग्राफ से सब कुछ सॉल्व कर देंगे. ओके, सो लिखिए, एक लाइन लिखो बेटा इसमें. The velocity graph for a uniformly the velocity time graph माफ करना. The velocity time graph for a uniformly accelerated motion is a straight line. ये देखो, ये हम एक ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर this is that is time velocity. ओके, ये है. Here it is uniform acceleration. ठीक, मान लो this point is A, this point is V. यदि हम इसको ऐसे लेके आएंगे, here t is equal to 0 and here t is equal to t. If this is A, B, consider this is C. And again we draw a parallel line along time axis, and this point is called D. Okay, so here no doubt this is velocity or this is time. So at when time is 0, speed is u, and when time is t, so speed is
v, राइट। ये ग्राफ बना लीजिए। बच्चों सेम ग्राफ से हम लोग हम यहाँ पर तीनों इक्वेशन एक साथ ड्राइव करने वाले हैं, एक ही ग्राफ से। ग्राफ बन गया बेटा? यस सर। ओके, सो लिखिए, it is clear that from this graph slope of VT graph is equal to tan theta। स्लोप को बेटा हम लोग हमेशा टेंजेंट से बताते हैं हम लोग, ओके, tan theta। if it is angle theta, so बारहवीं बेटा, what is tan theta? बताओ बेटा बारहवीं, what is tan theta, the value of tan theta? देवांशी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस, बिल्कुल सही बात है। तो इन अवर केस व्हाट इज परपेंडिकुलर? BD upon AD. BD. BD, वेरी गुड, BD अपॉन AD। A B, नो AB, राइट, ठीक है। BD कितना है बेटा? BD इज BC माइनस CD, राइट और रॉन्ग? AB होगा या AD होगा? सर AD होगा। सर AD होगा। सर एडी होगा। अच्छा AD होगा, मेरा ख्याल, मैं तो बच्चों की बात मानता। ओके, BD कितना होगा बेटा? BD कैन राइट लाइक दैट BC माइनस CD अपॉन AD, ऐसा लिख सकते हैं बेटा आप लोग? यस सर। Yes, BC sir. CD, ओके। VC कितना है बेटा? इट इज इक्वल टू वी। V, और CD कितना है? U, और ये AD कितना है? जितना OC है, कितना है ये बेटा? T। T। क्यों मैंने आपको कल बताया था, परसों कल ही बताया था कि द स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिखो, वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, hence acceleration is equal to कितना हो जाएगा? V minus U is equal to T, और in next case V minus U is equal to AT, and finally V is equal to U plus AT, right? So this is the answer. As you know, it is called first equation of motion. चाहो तो लिख देना नीचे, it is first equation of motion. It is first equation of motion.
हो गया बेटा? यस। Yes. अब फिर देखो, अब हमको यहां पर एरिया निकालना है बेटा, एरिया। और एरिया निकालना है कौन सा? AOCB। ये क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। इसका एरिया निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट दिस एरिया। फर्स्ट इज we directly apply the formula of trapezium, right? Yes or no? Yes, sir. And the second one, we have a little different method, that is because Triangle plus trapezium is the sum of one rectangular and one triangle. Triangle. तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसे, चूंकि दो ही तरीके हैं हमारे पास और हमारे पास दो ही इक्वेशन बची हैं, तो पहले हम इसको सेपरेट करके करेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा, एक बात मैं बता दूं आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ बनता है, एंड दिस ग्राफ कवर सम डिस्टेंस विथ टाइम एक्सिस। सो दिस टोटल एरिया is equal to the distance which is covered by body। यानी कि यदि आपको VT ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, तो आप उससे दो चीजें निकाल सकते हैं। उसका tan थीटा निकाल करके उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और उसका एरिया निकाल करके आप उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, विदाउट एनी इक्वेशन, ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यदि आप ग्राफ दिया हुआ है तो आप सिर्फ ग्राफ की हेल्प से उसका एरिया, उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, और एज वेल एज उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है वो भी कर सकता है। देखिए, we know that VT graph make some area with time axis, and it is equal to the area of it is equal to the distance covered by the body। Okay, hence area of trapezium AOCB is equal to, क्या हो जाएगा लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, एज यू नो एरिया ये जो है AOCD, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस S।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी कि AO इंटू OC, सो AO इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 1/2 बेस अपॉन हाइट, बेस बोले तो AD इंटू हाइट मीन्स BD। ओके, AO means T, sorry, AO means U, OC means T, half, AD means T, और BD कितना हो जाएगा, BD is V minus V minus U, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। V minus U, फिर लिखिए, बट वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है U प्लस AD, V इज इक्वल टू होता है U प्लस AD, so V minus U is equal to 80. Substitute the value of V minus U, then we have S is equal to UT plus half into T into 80. S is equal to UT plus half into T into 80. And finally, S is equal to UT plus half AT square. This is well-known second equation of motion. Second equation of motion. हो गया, आराम से। S is equal to UT plus half AT square. This is second equation of motion. Now we will try for third one. फिर लिखिए, वही सेम आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCO is equal to रोनेत, यस सर। बता फार्मूला ट्रेपेजियम का क्या होता है। सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, 1/2 sum of parallel side. So in our case AO and BC is parallel साइड्स, है ना, so AO plus BC and हाइट हाइट AD, कितनी है, AD, यस या तो AD या OC एक ही बात है ना, यस सर। लिख दिया। ओके, 1/2 AO कितना है, AO U, राइट, BC कितना है, V, राइट, AD कितना है, T।
ठीक है, क्या आ गया 1/2 u प्लस v इंटू टी। दो, अब डेफिनेटली ये तो एस हो ही जाएगा, मगर अभी हमारा काम यहाँ से कुछ बनता नहीं। फिर आप लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगेन वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। ठीक, एक मिनट, एक मिनट, चलिए, we know that u is equal to a plus at, so v minus u is equal to at and t is equal to v minus u upon a. Substitute the value of t here, so s is equal to 1/2 into u plus v into v minus u upon a. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होते हैं हम जानते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फाइनली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. This is third one equation of motion. V square ठीक है, so that is third one. Okay, now we calculate some numericals. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसे आपको अभी करना है, टाइम रहेगा 5 मिनट्स, नहीं हो पाता है तो फिर मैं बताऊंगा।
यस, ये आपके पास एक डायग्राम है, आपको ये बताना है इसमें कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, और इसकी मैक्सिमम और इसका एक्सेलरेशन कितना है, निकालिए। सर डिस्टेंस 72 meters. 72 आ गया, हाँ, ठीक है, और फिर सर डिस्प्लेसमेंट 0. 0 आया है, नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट 10. ठीक है, ये 10 आपकी मर्जी है, हमारा क्या है। सर और क्या निकालना था? एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन भी होता है और इट में भी डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है। सर एक्सेलरेशन 3/2 meters per second है क्या? मैंने अंदाज से वैसे मैंने बना दिया ये क्वेश्चन। ओ ए बी सी डी, आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। सर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.5 वही बताया मैंने। पर सेकंड स्क्वायर। 1.5 क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस या माइनस? सर -3 meter per second square. चलो ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है, ये भी बोलना नहीं कह रहा है। और कोई इसमें ऐड करना चाहता हो? चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि इसका कुल कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, टोटल एरिया। तो ये एरिया कितना आएगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस, बेस कितना है इसका बेटा? 6 है ना, 6। हाइट कितनी है इसकी? 6। तो 2 3 या 6, कितना आंसर आया ये? 18। ठीक, ये 18 इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये डिस्टेंस भी है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसका एरिया कितना है? 1/2 बेस, बेस मींस 10 - 6 यानी कि 4। तो ये कितना दिया है? 6। तो 2 2 या 4, तो कितना आ गया ये? 12। सो द टोटल डिस्टेंस इज 30 मीटर। आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। याद है हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस नेवर be negative. हाँ, नॉट नेगेटिव, कम भी नहीं होती, वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो 18 + 12 कितना हो गया? 30। ओके, सो योर फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। नाउ फिर उसने कहा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। तो 18 + -12 कितना आंसर आ गया? 6 मीटर। So 6 meter, again your wrong answer. Okay, so the first answer, the total distance is 12 meter. नहीं, sorry, कितना था? 30, ना कितना आएगा?
30 meter. First answer is 30 meter. Second answer is 6 meter. Now the question is acceleration. बच्चों, there is 4 acceleration. There is 4 acceleration. 4. Okay? कौन सा? 1, 2, 3, 4. How to identify? So it is depend on the slope. So what is slope? Okay, पहले हम बात करेंगे इसकी. Slope मतलब tan theta. Slope OA कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सही बोल रहा हूँ या उल्टा बोल रहा हूँ? सर उल्टा. हाँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस. कितना है बेटा परपेंडिकुलर? 6. और बेस कितना है? 4. So answer is 3/2 meter per second square. In next case, slope of OB कितना होगा? परपेंडिकुलर सर ओवर ए बी होना चाहिए. AB. ओ सॉरी, हाँ AB, माफ करना, AB कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस. कितना है बेटा परपेंडिकुलर? 6. और बेस कितना है? 2. सो आंसर इज 3 meter per second square. Here third case, slope of BC क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस. कितना है बेटा परपेंडिकुलर? 6. बेस कितना है? 2. आंसर इज 3. सिमिलरली सर -6. क्या बात है मेरे लाल, अब सही बोला. गुड, वेरी नाइस. -6. So it is -3. And in last case 6/2. So +3. So now here the slope of AB, BC or CD is same, that is 3 meter per second square in magnitude. बच्चों remember, in magnitude. But second one is negative. So remember, this AB and this BC both are क्या है? अब देखो यहां पर क्या हुआ, मिस्टेक जब होती है तो मिस्टेक होती है. मिस्टेक जब होती है तो सर लास्ट वाली सीडी की निकाली है. हाँ, सीडी की. सर ये इसमें -6 नहीं आएगा, प्लस का 6 प्लस आएगा उसमें. सर ये भी तो नीचे ही है ना. हाँ, अब ध्यान देना. अब मैं इसको पूरा उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ. मैं क्या हुआ कि अभी थोड़ा इसकी भी बातों में आ गया. निशान का अच्छा लगा नहीं है मुझे, गिफ्ट को आता है. सर नहीं, वो सो वाले स्लोप पे वो नीचे आ रही थी, पर इसमें वो एक्सेलरेट ऊपर हो रही है, इसीलिए फिर पॉजिटिव लेंगे. AB is negative. Remember बच्चा, AB is negative, but BC is positive. ध्यान देना. And again CD is negative. अच्छा, नेगेटिव कब होता है कोई चीज? बताओ मुझे. ए नेगेटिव का मतलब क्या है? क्यों? What is the meaning of A negative? रिटार्डेशन. मीनिंग वो तो उसका वो बता. वेलोसिटी कम हो रही है सर. सर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. वेलोसिटी कम हो रही है एंड इज गोइंग टू रेस्ट. ओके,
तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड कितनी हो गई, 0। 0 हो गई। So AB is negative, but BC is positive. Why positive? Because again the speed is increasing. इससे मतलब नहीं कि वो किस दिशा में जा रही है, लेकिन वो बढ़ रही है. So here it is positive, and again it is negative. Obviously it is positive. So here we have OA and CD is positive acceleration, and AB, OA positive and BC positive. At the same time, AB negative and CD also negative. So this is the way to solve the question. This is my advice and little order also. You have to go through your questions, especially for NCERT or as well as जो भी आपके पास बुक है, रिफ्रेशर बुक, उससे भी जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को आपको करके देखना है. ओके, इसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं. जाएगा नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो. यहाँ मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन साइन अप. सर इस क्वेश्चन में फिर हाईएस्ट एक्सीलरेशन कितना होगा? हाईएस्ट एक्सीलरेशन जाएगा 3 और -3 बोथ लिखना पड़ेंगे आपको. 3 एंड -3. ओके सर. हाँ, बस क्योंकि वो जो बात है मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं है यहाँ पर, है ना. सर हाँ बोलो बेटा. सर कल एक वो आया था सीबीएसई का कि 30% रिड्यूस हो गया, हाँ, है ना? मैंने तो भेज दिया. सर वो एनएलएम के तो वही हटा दिए लॉस पूरे. कौन से वाले? सर वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड तीनों हटा दिए ना. लेकिन अपन तो पढ़ेंगे भाई. देखो हाँ, बेटा, सर. मैं आपको ये बता दूं, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं. मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. क्योंकि यहां से तो उन्होंने हटा दिया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड मोशन. लेकिन जब आप अगले साल 12th में आओगे तब कोरोना नहीं होगा, तब फुल सिलेबस होगा. तब हाँ, जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें वही आएगा. इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपसे बोलता रहूंगा कि इट इज नॉट योर सिलेबस, और ये आपके सिलेबस में है. जो सिलेबस में है उसको आपको पढ़ना है अभी, ठीक है ना. जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आपको नोट करना है, वो आपको आगे काम आएगा. हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना. हाँ, यदि आपको लगता है आपको नहीं पढ़ना है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो फायदा हो जाएगा. सर पढ़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊं. मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं उसको पढ़ाऊंगा. वो इसलिए जिससे कि क्योंकि ये बस 1 साल की बात तो है, क्योंकि कोरोना आगे नहीं रहने वाला. लेकिन ये लॉ है वो आगे भी रहेंगे, वर्षों तक रहने वाले हैं. कल आप जब आगे जाओगे, क्लास में जाओगे, बीएससी जो भी करोगे, वहाँ ये काम आने वाले हैं. तो हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा. तो बस हाँ, मैं खुद बोल दिया करूंगा आपसे कि नहीं भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज पढ़ो, आगे बढ़ जाओ. ओके.